Hello guys. Hello guys. Very good afternoon to all of you. As you? Fine. It's me Pradeep Padak, and as you know, today we are providing you seminar on ethical hacking. Do you know? I know that. Yes. It's second time in your class, but we provide on last Sunday, 14 September. I think some students come here. Yes? Our chief, Mr. Odin Narayan Gaur. I think what people know him. No or not? Yeah, I know people. No or not? Yeah. Yes, now. जानते हो या नहीं जानते हो उन्हें? उदित नारायण गौर को जानते हो या नहीं जानते हो? Yes. He developed a website on Teacher Day 5 September. I think you read on newspaper. Yes? Yes. As I show you. Just read it. He is our chief on his way. He is a student of NIIT. Software engineering. Okay? So I just request you, Udit Narayan Gaur, please come on the stage and say something on ethical hacking. Thank you. Clap to कर दो यार. Very good afternoon all of you. Very good afternoon all of you. Good afternoon everyone. Very good afternoon to all of you. My dear friend and my respected mentor, Mr. Bharat Singh. So guys, how are you? Fine. So today we are here to information about your hacking classes, right? Yes. So let's start the classes. So first of all, I want to tell about my hacking classes. As you already know about us and about my success. Yes or not? Yes. So first of all, I want to introduce myself. This is Udit Narayan Gaur. As you know, currently I am pursuing software engineering diploma from NIIT and BSc second year from SSGS Aligarh. Sorry, B class. So today I am going to introduce about the hackers and hacking, and I will remove your description about the hackers. What type of hackers? What type of them? What to do with by hackers? So let's start. Mr. Pradeep. Yes, sir. Last one. Mr. Pradeep, just show your. Just wait, please, sir. Just wait. So, very welcome on our classes. So, again, I want to tell something about our hacking classes. So, are you enjoying? Yes or not? Yes. So, guys, tell me first of all, आपको कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट किस को है? अपना हाथ ऊपर करें. I think all. Yeah. You all are guys to do covered? Yes or not? So, प्लीज मुझे ये बताइए कि आपका मेन पर्पस क्या है आने का? Hacking. Do you know about the hacker? Yeah. Mr. Piyush, stand up. Are you know something about the hacking?
Yeah. So tell me your first of all I want to start. Recording. Yes. ऐसे ही Who are the ethical hackers? जैसे कि Type of hacking. जब चलेगी नहीं स्क्रीन पे Who defend from hacking? Conclusions and summary. So guys सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपको हैकिंग के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होगा ना? कोई भी स्टूडेंट खड़ा होकर मुझे बताइए दो शब्द अबाउट हैकिंग. Anybody else? जूम कर नहीं तो Nobody? Okay. Let me tell you about the hacking. So let's start. What is hacking? What is hacking? You are so clever from other person. I will give you example of programmers and hackers. So guys, you already know about the programmers. You know what is program? Program. सबसे पहले मुझे ये बताइए यहाँ पे BCA के कितने बच्चे हैं? BCA. Just raise your hand. Yeah. Yes, stand up. BCA, Bachelor of Computer Application. Yeah. What? Yashna, please stand up. Please tell me about the what type of language you read. आपको पता है कौन सी लैंग्वेज पढ़ी है? तो सी शार्प सी लैंग्वेज C language, C programming, data structure. डेटा स्ट्रक्चर राइट. So first of all, I want to introduce. As you know what is programming, but you are as आप शर्मा रहे हो बताने में, but everybody know about the coding, syntax, programs, right? These are the language. It will help to design a software and perform a basic calculation like a calculator. Calculator, you know about the calculator? उसके पीछे तुम तो 2 मिनट में कर देते हो, बड़े बाकी क्या तुमने उसके पीछे की प्रोग्रामिंग को जाना है? No. So please give me marker. Marker. प्रतीक सर marker. अब जब मैं बता ही रहा हूँ तो बेसिक से स्टार्ट क्यों ना हो जाए, राइट? सो सबसे पहले सी लैंग्वेज के बारे में कौन कौन जानता है? सुना तो होगा ना? सी लैंग्वेज, ठीक है. देखिए मैं आप ज्यादा डीपली नहीं जाता, बताता हूँ प्रोग्राम्स क्या होते हैं. सी लैंग्वेज के जो प्रोग्राम्स है, सबसे पहले मैं सिंटैक्स के बारे में आते हैं. एवरीबॉडी नो अबाउट द सिंटैक्स? कोई भी हो बताओ, शर्माने की बात नहीं है इसमें. यस और नो? बस मैं पूछूंगा नहीं, बताओ तो सही. यस या नो? सिंटैक्स. Nobody know about the syntax? Yes. Yeah. So the combination of syntax that's called program. Understand? क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लगता है. मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें नॉलेज नहीं है बट शो नहीं कराना चाह रहे. मुझे ये भी पता है. ये सब 6th क्लास की बातें हैं जो कि अब सीबीएसई में हो गई है, बट यूपी बोर्ड में सबसे पहले कुछ भी नहीं था. यूपी बोर्ड में आपकी गलती नहीं है, ये गलती स्ट्राइडेरिया की है. तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि प्रोग्राम्स होते क्या है. कोडिंग होती है अनरीडेबल फॉर्मेट में जो तुम्हारे बैकग्राउंड में किसी सॉफ्टवेयर के पीछे होती है, राइट? सो द कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स दैट्स कॉल्ड सॉफ्टवेयर. तो अब बात आते हैं हैकिंग पे. हु आर हैकर्स? सबसे पहले समझ गए ना हैकिंग क्या होती है? जो आपके पासवर्ड को आपकी राइट के बिना एक्सेस कर सके. आपकी फेसबुक अकाउंट को कोई भी हैक कर सकता नहीं कर सकता. जो करे वो कौन है? वो हैकर. बट सबसे पहले मैं आपकी हैकर की प्रॉपर डेफिनेशन बताता हूं. हैकर, a hacker is a hacker who provides the computer security for little reason beyond malicious और for person gain. सबसे पहले हैकर के बारे में बताता हूँ. हैकर वो पर्सन होते हैं जो तुम्हारे अपने, अगर मैं अपनी लैंग्वेज में बोलूं तो छोटे से लालच के लिए वो किसी के भी अकाउंट में हैक कर सकते हैं, अकाउंट को हैक कर सकते हैं किसी का भी. सो अपने थोड़े से फायदे के लिए किसी का पूरा कारोबार को बेकार कर सकते हैं, किसी का बिजनेस ठप कर सकते हैं एंड ऑल. सो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि हैकर
आप ये बताइए, आज की जनरेशन में हैकर का नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, राइट राइट। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपकी जो डिस्क्रिप्शन अबाउट द हैकर्स हैं वो आपकी गलत है। हैकर्स वो नहीं होते, मैं आपको बताऊंगा हैकर्स कौन कौन होते हैं, उनके कौन कौन से टाइप होते हैं। जस्ट हैकर्स क्लासेस, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा इनकी 3 क्लासेस होती हैं हैकर्स की। फर्स्ट ब्लैक हट, सेकंड व्हाइट हट, थर्ड वन इज ग्रे हट। तो ब्लैक हट बारे में बताऊंगा। ब्लैक हट में क्या होता है आपका कि ये बुरे लोग होते हैं, यानी कि बुरे, यानी कि एक वन वर्ड में बोलूं तो ये अपने फायदे के लिए किसी का भी अकाउंट हैक कर सकते हैं, किसी को भी परेशान कर सकते हैं। इन हाईली स्किल्स malicious destructive crackers, in other words we can say that it's not a hacker, they are the crackers, understand? ये तो बस मीडिया ने उड़ा के रख दिया है कि जो भी काम करते हैं हैकर्स, वो उनकी गलती नहीं है, बस मीडिया ही है जो किसी को बना भी सकती है, बिगाड़ भी सकती है। सबसे पहले आपकी ये दूर करना चाहूंगा मिसकंसेप्शन। तो जो कि आपके प्रोग्राम्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, आपकी कंपनी का डेटाबेस को डिस्ट्रॉय करते हैं, आपके बैंक अकाउंट में पैसे चोरी हो जाते हैं, आर ब्लैक हैकर्स, राइट? सो प्लीज गिव मी मार्कर। लेकिन मैं तुमको एक चीज और बताना चाहूंगा, दे हैव अ सेम नॉलेज बट about hackers the same skills that as you are saying white hat hackers skills used for definition security analyze, यानी कि होते तो सेम हैकर्स ही हैं, ठीक है, सेम नॉलेज होती है, ये भी अकाउंट को ब्रेक कर सकते हैं, पासवर्ड को हैक कर सकते हैं, जैसे आपका फेसबुक का पासवर्ड, जीमेल का पासवर्ड, एटीएम को एक्सेस कर सकते हैं बिना आपकी परमिशन को जाने हुए। बट ये ना इलीगल वर्क नहीं करते, ये सरकार के साथ होते हैं, जो हमारी गवर्नमेंट है लाइक मोदी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा एक बात कि जो मोदी है, नरेंद्र मोदी, उनकी भी वेबसाइट ब्लैक हैट हैकरों ने हैक करी थी और व्हाइट हैट हैकर इनकी मदद करते हैं उनकी वेबसाइट्स को बचाने के लिए। सो प्लीज मिस्टर प्रतीक सर, just open the video. Double click. Can I? Last one. So these are news about the Narendra Modi. Just play, Mr. Sir. हैक कर ली गई। नरेंद्र मोदी की वेबसाइट को नामालूम पाकिस्तानी हैकर्स ने हैक किया है। नामालूम हैकर्स की जानिब से नरेंद्र मोदी की वेबसाइट पर भारत की पाकिस्तान के बारे में गुमराहकुन खबरें शाया करने वाले भारतीय मीडिया, खुसूसन कदामत पसंद सियासतदानों को सख्त तनकीद का निशाना बनाया गया है। Please repeat this video. भारतीय जनता पार्टी की जानिब से सदारती उम्मीदवार का इंतखाब लड़ने वाले नरेंद्र मोदी की वेबसाइट हैक कर ली गई। नरेंद्र मोदी की वेबसाइट को नामालूम पाकिस्तानी हैकर्स ने हैक किया है। नामालूम हैकर्स की जानिब से नरेंद्र मोदी की वेबसाइट पर भारत की पाकिस्तान के बारे में गुमराहकुन खबरें शाया करने वाले भारतीय मीडिया, खुसूसन कदामत पसंद सियासतदानों को सख्त तनकीद का निशाना बनाया गया है। So guys, तुम देख रहे हो, ये वो हैकर नहीं, they are the crackers. Understand? Stop the video. लड़ने वाले नरेंद्र मोदी की वेबसाइट। So guys, अब आप समझ ही गए होंगे मेरा कहने का पर्पस क्या है, ठीक है? तो सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगा, ये जो नरेंद्र मोदी जी की वेबसाइट हैक हुई है, मुझे इसमें न्यूज में आपको नहीं बताया गया कि किन ग्रुप ने करी है, बट मैं जानता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ इन प्राइवेटली। पाकिस्तान हैकर क्रू नाम का ग्रुप है, इसको मैं जानता तो नहीं, लेकिन इसके अपडेट्स डेली पढ़ता रहता हूँ। ये बहुत ही खतरनाक है। आपको पता है सबसे ज्यादा टैलेंटेड हैकर्स कहाँ पे पाए जाते हैं? एनीबॉडी एल्स? पाकिस्तान। या पाकिस्तान, बिकॉज पाकिस्तान खुद कुछ करना नहीं चाहता, वो दूसरों की चीज को चुराना चाहता है, राइट? बस यही एक रीजन है कि पाकिस्तान के हैकर्स सबसे ज्यादा स्मार्ट होते हैं, बट स्मार्ट की बात नहीं करना, इलीगल वर्क में ज्यादा होते हैं। अभी आपको पता होगा आपने कि अभी एक न्यूज़ आई थी, गूगल के 50 लाख अकाउंट हैक हुए हैं, किसने पढ़ा था?
सभी ने तो पता तो लगे आप अपने अकाउंट में कैसे सिक्योरिटी लगा सकते हैं, आपको उनके बारे में जानकारी पता लगे कि ये जो हैकर्स हैं कौन कौन सी ट्रिक्स अप्लाई कर सकते हो जिससे कि आप अपने बिजनेस में सिक्योरिटी लगा सकते हो, अपनी कंपनी के डेटाबेस में सिक्योरिटी लगा सकते हो। और छोटी मोटी चीजें फेसबुक अकाउंट, जीमेल वगैरह जो भी कोई भी हैकर के मिसयूज कर लेता है, जैसे कि किसी की फेक आईडी बना दी, हमारी बहनों की फेक आईडी बना के लोग यूज करते हैं, राइट। तो मैं आपको सब चीज का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा इन दिस सेमिनार। सो जस्ट स्टार्ट, प्लीज रिव्यू दिस वीडियो। नो, सो नाउ द थर्ड कैटेगरी इज ग्रे हट हैकर्स। सो ग्रे हट हैकर्स की कैटेगरी में हम आते हैं। हम आपको बताते हैं कि हम क्यों ऐसा करते हैं। जरूरत आने पे भी इलीगल वर्क कर सकते हैं हम सरकार के लिए, क्योंकि इसमें क्या होता है कि अब हम खुद अच्छे बन जाए, ठीक है, तो कोई भी हमको डिस्ट्रॉय करके चला जाएगा। हमारे इंडिया को कोई भी बंदा बाहर का अपनी साइबर क्राइम के द्वारा, ट्रिक्स के द्वारा, प्रोग्रामिंग के द्वारा, अपनी स्किल्स के द्वारा देगा सेम नॉलेज बट डिफरेंट टारगेट, राइट। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा ग्रे हट हैकर में ज्यादा डिफरेंस नहीं है वाइट हट हैकर्स, मतलब होते तो ये वाइट हट हैकर्स ही हैं, बट इनमें क्या होता है कि दे हैव अ सेम नॉलेज, सेम वर्क, सेम टारगेट, बट इन डिफरेंट सिचुएशन दे विल टेक एनी स्टेप, चाहे वो इलीगली क्यों ना सही, राइट। तो सभी समझ चुके होंगे अबाउट द थ्री कैटेगरी ऑफ हैकर्स। प्लीज नो कमेंट, जस्ट स्टैंड अप who's guys। हाँ, आप बताइए आपका क्वेश्चन क्या है, आप बताइए, खड़े हो जाइए, नहीं आप खड़े हो जाइए, आप बताइए आपकी क्या चीज समझ में नहीं आई है। हम इसीलिए हैं, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। सो व्हाट इज इथिकल हैकिंग। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया हैकिंग क्या होती है, अब आप हैकर्स के बारे में जान चुके हो। अब मैं आपको बताऊंगा इथिकल हैकिंग होती क्या है। इट इज अ पार्शियली लीगल में वेरी कंट्री लॉ, बहुत पार्शियली होती है, लीगल होती है, यानी कि ये बुरी नहीं होती। इथिकल नाम लगते ही ये पॉजिटिव साइड में चली जाती है, यानी कि ये सरकार के पक्ष में वर्क करने लग जाते हैं, यानी कि हम जो काम करते हैं वो लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, घर पे बैठ के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। चाहे इसके लिए हम अपनी टेक्निक्स यूज कर सकते हैं और हम इलीगल वर्क कोई नहीं करते, लाइक बैंक अकाउंट, फेसबुक अकाउंट और भी कई सारी चीजें, बट हम हेल्प कर सकते हैं, उनको गाइड कर सकते हैं, कैसे सिक्योर कर सकते हैं, बट हमें सब चीज की इंफॉर्मेशन है। आई विल टेक अबाउट द ओरिजिनल हैकर्स, हैकिंग एंड स्किल्स अबाउट इन आवर कोर्स, बिकॉज बिना सर्टिफिकेट के आप अगर ये काम करोगे तो आप इलीगल माने जाओगे, राइट। अगर आपके साथ सर्टिफिकेट नहीं होगा और आप चाहे अच्छा ही काम क्यों ना कर रहे थे, लेकिन आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको पुलिस पकड़ के ले जा सकती है, उसके पास 7 साल की इसकी मिनिमम वो है सजा और लाइफ टाइम की भी हो सकती है, उम्र कैद। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कंप्लीटली लीगल इन इंडिया इफ यू आर डूइंग दिस डिप्लोमा, परमिशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द टारगेट यूजर। परमिशन लेने टारगेट से है पार्ट ऑफ द ओवरऑल सिक्योरिटी प्रोग्राम, ओवरऑल सिक्योरिटी प्रोग्राम, सभी सिक्योरिटी का प्रोग्राम का पार्ट होता है। आप कंफ्यूज मत होइए, आप ये बताइए कि अगर आपको कोई चीज में प्रॉब्लम हो तो आप मुझे खड़े होकर बता दीजिएगा अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। मैं हम यहाँ इसीलिए आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम सो जस्ट मिस्टर नो, सो लेट्स स्टार्ट। हु आर एथिकल हैकर्स, कंप्लीटली ट्रस्टवर्दी, यानी पूरी तरह से विश्वास पात्र होते हैं, राइट। एंड सेकंड वन इज स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग एंड कंप्यूटर नेटवर्किंग स्किल्स की स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग होती है, वो किसी भी सॉफ्टवेयर पे वर्क कर सकते हैं, किसी भी चीज पर, एंड उनकी स्किल्स इतनी तेज होती हैं आप प्रोग्रामर्स की तरह, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर और हैकर। आपको मैं सबसे बेस्ट एग्जांपल बताता हूं हैकर का और प्रोग्रामर का, राइट। तो जो प्रोग्रामर होता है वो पूरी साल पढ़ता है, पूरी सेमेस्टर बीटेक करता है, देन वो बना के एक सॉफ्टवेयर डेवलप करता है, राइट। बट अगर बंद कर देता, बट दे डोंट नो नॉलेज अबाउट द हाउ टू सिक्योर द सॉफ्टवेयर। लेकिन अगर हैकर चाहे तो एक झटके में उसकी प्रोग्रामिंग को चुरा सकता है, उसकी 5 साल की मेहनत को 1 सेकंड में बिगाड़ सकता है। तो उस नॉलेज का फायदा क्या हुआ, जो अपने स्किल्स को सिक्योर ही ना कर पाए, अपनी प्रोग्रामिंग को, अपने सॉफ्टवेयर को, इसका कोई बेनिफिट हुआ?
नहीं हो ना, तो अब हम आपको बताएंगे क्या क्या होती है बेनिफिट। डिटेक्टिव प्रोड्यूसर इथिकल आर द प्रोसेस सेम स्किल्स माइंडसेट एंड टूल्स हैकर बट डिफरेंट अटेंड दे आर डिस्ट्रक्टिव मैनर। वही बात है इसमें जो मैंने बताई आपको डिफरेंट। एंड ईजी साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर, ये हमारे इन्वेस्टिगेटर सिक्योरिटी में होते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं एफबीआई को कौन कौन जानते हैं, नाम तो सुना होगा एफबीआई, राइट? यस और नो, ओनली यस और नो। यस, एफबीआई यूएस की सीक्रेट्स एजेंसी है जो कि हैकर्स को पकड़ने में यूज अपने स्किल्स को यूज करते हैं। लाइक एनोनिमस, किसने नाम सुना है एनोनिमस? दे आर द मोस्ट पॉपुलर हैकर्स ग्रुप इन आवर वर्ल्ड। एनोनिमस आज तक उनको कोई नहीं जान पाया है और न ही शायद ही कोई जान पाएगा, जहां तक मैं जानता हूं। उनकी स्किल्स इतने तेज होते हैं, उनकी टेक्नोलॉजी इतनी तेज होती है, जो बंदा सोचता है ना वो वहां से सोचना शुरू कर दे जहां से दुनिया सोचना बंद करती है। तो अब मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कौन कौन से हैकिंग के अटैक होते हैं, टाइप ऑफ हैकिंग। ठीक है, वेबसाइट हैकिंग ऑलरेडी नो अबाउट इट। वेबसाइट अभी मैंने आपको बताया एग्जांपल उसका। ईमेल हैकिंग जैसा कि आप सब जानते हो पहले से। नेटवर्क हैकिंग, नेटवर्क हैकिंग में क्या होता है कि तुम एक लाइन में ऐसे अबाउट दैट कंप्यूटर सेंटर जिसमें भी खड़े हो आप वहां पे पढ़ रहे हो, ठीक है? तो नेटवर्किंग कई टाइप की होती है, लैन वैन उसमें कि आपके नेटवर्क जो होते हैं लैन में होते हैं, सारे नेटवर्क के अंदर जुड़े होते हैं। कोई भी बंदा जाके उस नेटवर्क में एक कंप्यूटर में आके डिस्ट्रक्टर वायरस बना के डाल सकता है जो प्रीडिफाइंड होते हैं। आपको पता मेहनत ज्यादा नहीं होती, ठीक है, बट ये बस सेम आप देखोगे ये पंजों से अपने डॉलर का साइन परसेंटेज और भी कई सारी चीजें जो अनरीडेबल फॉर्मेट में होती है जो इंग्लिश में नहीं आती। यानी कि एक वर्ड में बोलूं तो अल्फाबेट नहीं होते जो आप यूज कर सकते हो। आपके अल्फाबेट को कोई भी सपोज है, एक और चीज मैं बताना भूल गया था, कभी भी अपने पासवर्ड में कोई भी डिक्शनरी का मीनिंग मत रखना। जैसा बोले एप्पल रख लिया, मैंगो रख लिया, और भी कई सारे मीनिंग है। जो ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी है, ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी, उसमें क्या होता है कि एज अ प्रोग्रामिंग स्क्रिप्ट वो पहले से सेव होती है। हम हैकर्स क्या कर सकते हैं उसमें कि आपने सपोज दैट आपने मैंगो रख लिया, कहीं ना कहीं तो होगा ऑक्सफोर्ड में, कोई तो मीनिंग एग्जिस्ट करता होगा इन द वर्ल्ड, तो डिक्शनरी अटैक टूल्स के द्वारा वो ऑटोमेटिक क्रैक हो जाता है। सबसे पहले तो कोई भी अपना पासवर्ड डिक्शनरी में से मत रखना जिसका कोई मीनिंग भरना हो, राइट? और दूसरा मैं आपको बताऊंगा कभी भी पासवर्ड यूज करने से पहले जैसा बोले एट द रेट एंड डॉलर का साइन, पंक्चुएशन की में डॉट भी यूज कर सकते हो, और भी कई कीवर्ड है जो आप यूज कर सकते हो। सपोज रुपीस भी आता है अब तो उसमें ए बी सी डी ए बी। एंटीवायरस, आपने देखा कि एंटीवायरस के आप डाल देते हो, सोचते हो आप सिक्योर हो गए, सोचते हो आप सिक्योर हो गए। क्यों? क्या मुझे कोई भी बंदा खड़ा हो, कोई भी स्टूडेंट खड़ा होकर मुझे बताइए एंटीवायरस डालने के बाद भी आपको क्यों ऐसा लगता है कि आप सिक्योर नहीं है? किसी को पता है? प्लीज बताओ। लग रहा है आपको एंटीवायरस यूज करने के बाद भी आपको लगता है कि आप सिक्योर हो? यस और नो? ओनली नो, राइट? क्योंकि ये ही सिक्योर नहीं होता। आपको पता है वायरस बनाता कौन है? जो एंटीवायरस की कंपनीज होती है। आप यार यस या नो? ठीक है। And separate the system from network, do not use internet। ये सबसे जरूरी होता है कि जब तुम्हारा लगे कि तुम्हारा अकाउंट हैक हो चुका है या तुम्हारे सिस्टम हैक हो चुका है, डेटाबेस क्रैश हो चुका है, तो अपना जो भी इंटरनेट जैसे मॉडम है उसे निकाल दीजिए, लैन है, वायरलेस वाईफाई है उसे भी डिसेबल कर दीजिए। इससे क्या होगा कि अगर वायरस की स्क्रिप्ट वर्क कर भी रही होंगी ना तो आपकी इंफॉर्मेशन पीछे से साइन नहीं करेगा, मतलब सर्वर पे, हैकरों के सर्वर पर, राइट? क्योंकि जब नेट ही नहीं होगा तो वो कुछ बिगाड़ नहीं सकता, राइट? रिस्टोर द सिस्टम विद द बैकअप। समझे? रिस्टोर किसी ने नाम सुना? बैकअप, बैकअप के बारे में मुझे बताइए। यहाँ पे आईटी फील्ड से भी बच्चे हैं, मुझे दिख रहा है। नॉर्मली सभी को पता है बैकअप क्या होता है? यस या नो? मैं पूछ नहीं रहा किससे खड़ा होगे, यस या नो? यस। तो बैकअप में क्या होता है कि जो आपका डेटा है ना वो बैकअप कर लिया जाता है, उसका इमेज ले ली, फाइल बना ली जाती है, ऑटोमेटिक रिस्टोर हो जाती है हमारे कंप्रेस। उसमें कंप्रेस का मतलब होता है वही जो आपकी फाइल है, आपकी वीडियो, गाने, एवरीथिंग, डेटा, पीडीएफ, आपकी सारी फाइल्स वो सारी उनका बैकअप बनके कंप्रेस होकर एक जगह सेव हो जाती है। जिससे क्या करते हैं, सपोज दैट आपका कंप्यूटर क्रैश हो चुका, आपकी विंडोज भी
बिल्कुल उड़ चुकी है, तब भी हम अपना डेटा बाद में रिकवर कर सकते हैं, राइट। जैसा लो ये होता है बैकअप का यूज। तो इससे क्या होता है कि प्लीज सर, हाँ, तो इससे क्या होता है कि जो आपके बैकअप होता है वो डायरेक्ट रिस्टोर हो जाता है, आपकी फाइल सारी सिक्योर, चाहे पासवर्ड पता हो चाहे कुछ ना हो, आपने चेंज कर लिया, आप पूरी तरह से सेफ है आप। यस और नो? नाउ एथिकल हैकर्स इम्पैक्ट। यस, हार्ड एंड सर्वर पे अटैक करते हैं, बहुत हार्ड होते हैं। सेकंड, स्कैन टेस्ट एंड अप्लाई पैचेस। आपके मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि जो हैकर्स यूज करते हैं वो क्या क्या यूज करते हैं, मतलब ट्रिक्स। वो सर्वर को एक ट्रिक होती है उसके थ्रू मतलब तैयार करते हैं, यानी सेम पोजीशन पर, और स्कैन टेस्ट करते हैं, अप्लाई पैच एंड मॉनिटर लॉग्स, यानी कि जो आपकी फाइल्स हैं आप यूज करते हो ना, जिसमें सपोज मैं आपको इन्वायरमेंट बताऊं, आपने माई कंप्यूटर पे क्लिक किया, देन उसके बाद कोई भी अपने फोल्डर में गए, आपको पता है इनडायरेक्टली वो फाइल डॉट लॉग एक्सटर्नल यानी आपकी नोटपैड की तरह एक फाइल एक्सेस हो जाती है, यानी बन जाती है उसकी डुप्लीकेट फाइल आपके बैकग्राउंड में। जिससे क्या होता है कि जो तुम्हारी फाइल्स हैं उनके बारे में पास हो जाता है, यानी आप बाद में देख सकते हो कि वो जो फाइल्स हैं कि हमने किस किस फाइल्स में आके हमने एक्सेस किया, कंप्यूटर को भी देख सकता है। वो चीजें हैं इसके अंदर मॉनिटर लॉग्स। टेलर टेक्निकल स्टाफ ऑन सिक्योरिटी, जो भी टेल्स की अगर सिग्नल्स को वो कर दे तो कुछ भी हो सकता है। अगर उनके स्टाफ जैसे उनकी लाइट होती है ग्रीन रेड, आपने सुना था होगा, लाइट्स वगैरह हैक होती है तो एक्सीडेंट होते हैं, ब्लैक आउट करते हैं ना उन्हें, व्हाइट आउट तो जानते हो बनता। सो ये बहुत सारी डिफरेंस होती हैं। हाउ मच डू इथिकल हैकर्स गेट पेड? अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा इथिकल हैकर्स की सैलरी कितनी होती है इन ग्लोबल। यू कांट इमेजिन, कैन एनीबॉडी टेल मी, अंडरस्टैंड और नॉट? किसी को आइडिया है कितना कमा सकते हैं वो? यस या नो? देख लो खुद, ग्लोबल the hiring of ethical hackers is on the rise with most of them working with the top consulting firms. Can you imagine? No, ये उनके हाई सैलरी पेड होती है, ये नहीं हर कोई कमा सकता है। लेकिन क्या होता है डिफरेंट टैलेंट में डिफरेंट चीज वर्क करती है। अब मुझे बताओ कि सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आजकल तो ये हो रहा है कि नकल हो रही है, वो बंदा बीटेक कर रहा है तो मैं बीटेक करूंगा, कि जहाँ पे भीड़ है वहां पर भागते हैं बंदे। यस और नो? बट अगर डिफरेंट लाइन चूज करके खुद अपने रास्ते खुद बनाओ तो कुछ अलग कर सकते हो। यस और नो? तो हैकिंग भी ऐसे ही है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा इसकी नॉलेज हर किसी को नहीं होती, हर किसी का मतलब ये नहीं किसी को नहीं होती, हर किसी को नहीं होती। अगर आप बनवर्ड यूज करो तो कोई भी इसमें इंटरेस्ट इसमें से नहीं लगता, क्योंकि इसकी टेक्निक्स जो होती है ना बहुत ही क्लेवर तरीके से यूज करी जाती है। इसकी मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे आप यूज कर सकते हो, बिकॉज इसमें बहुत ही जैसे आपको तो लगेगा जादू कर रहा हूँ, ठीक है, बट जादू नहीं होगा, ना ही कोई हाथ की समझ होगी, वो प्रोग्रामिंग होगी मेरे स्किल्स की, मेरी नॉलेज की एंड एटसेट्रा। someday from 91 आप देख लो खुद कितना कमा सकते हैं, कमा सकते नहीं कमा रहे हैं, इसीलिए ये बहुत महंगी हाई पेड होती है। अब एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, नरेंद्र मोदी, अब वो रहे पीएम, लेकिन स्किल्स होते हैं कुछ सिस्टम्स यहीं से बैठ के इसको एक्सेस कर सकता हूँ रिमोटली। Just wait. एक सेकंड इधर बैठ देखिए मैं वायरलेस माउस भी यूज कर सकता हूँ और कनेक्ट भी कर चुका हूँ। देखिए मेरे हाथ में पूरा एक्सेस है इसका, देख रहे हो? आपने वायरलेस माउस तो देखे हैं, लेकिन हम एंड्रॉइड से भी यूज कर सकते हैं। आपको पता है इसके बारे में? किसी को पता है पहले से? यस और नो? ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ, आप प्लीज मुझे अपना नंबर बताइए, मैं आपके नंबर पे मैसेज करके दिखाऊंगा। बताइए अपना नंबर कोई भी। 9719201820। क्या मतलब है हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं स्मार्टफोन को।
ठीक है। अब मैं आपको इसके फाइल एक्सेस करके दिखा सकता हूँ, इसकी कॉल लॉग एक्सेस करके दिखा सकता हूँ, और इसके मिस कॉल, रिसीव कॉल, पूरे कॉन्टैक्ट एक्सेस करके दिखा सकता हूँ। जस्ट वेट भैया कीवर्ड्स, ठीक है। देखिए अब मैं देख सकते हो, आप मैं सारे कॉन्टैक्ट एक्सेस कर सकता हूँ, देखिए, और इनकमिंग ये कर सकता हूँ, और कोई भी कर सकता हूँ, लिस्ट भी कर सकता हूँ, मिस कॉल भी, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। देखिए मेरा नंबर, और देखिए मैं यहीं से बैठ के कॉल भी कर सकता हूँ, क्लिक करूँगा इस पे और देखिए कॉल हो रही है, कॉल हो रही है, और पेमेंट मोबाइल गाना याद है, ठीक है। और इसकी फाइल भी एक्सेस कर सकता हूँ। ये नॉलेज है, एडवांस टेक्नोलॉजी है जो आपको पता नहीं है, लेकिन ये यूज होती है, लेकिन यहाँ नहीं, आउट ऑफ कंट्री में बस कुछ सिटी में यूज होती है, जो भी कुछ स्टूडेंट्स करते हैं, कुछ टीचर्स करते हैं। और मैं आपको बता सकता हूँ, यहीं से आप अपने प्रोफाइल चेंज कर सकते हो, अपना वॉलपेपर चेंज कर सकते हो, मोबाइल का एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ पॉसिबल है यहाँ पे, ठीक है। हम आपको यहाँ से कॉन्टैक्ट एक्सेस भी कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, कुछ भी एक्सेस कर सकते हैं। अब अकाउंट भी देख सकते हैं, कुछ भी। अब मैं आपको ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपको मेन पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। अब ये बताइए, ज़्यादातर की प्रॉब्लम ये है मेरे सामने कि उधर एक बात बता यार, मेरा मोबाइल फोन खो चुका है, अब मैं क्या करूँ? मैं अपने फोन के बारे में बताऊँ, मैंने मोबाइल लिया था 7000 का माइक्रोमैक्स यूनाइट 2, अब उसकी पॉलिसी करा रखी थी मैंने, कुछ इलीगल तरीके में भी यूज कर लेता हूँ, लेकिन सॉरी कैमरे में रिकॉर्ड मत करना उसे। हाउ टू इंस्टॉल विंडो इन अ कंप्यूटर, ये है आज की पढ़ाई। वो जानते हो? आप सोच सकते हो, मतलब सीएस बंदा टॉपर कर लिया, सीएस बीटेक से टॉपर है, बट उसके प्रैक्टिकल स्किल्स बिल्कुल भी नहीं है, तो क्या होगा इस देश का? सोचो, होने वाली बात है। यानी कि विंडो तक डालनी नहीं आती, सीनियर डिपार्टमेंट का टॉपर है, अब प्रोग्रामर तो दूर की बात ना, प्रोग्रामर तो दूर की बात, रटंत विद्या फलंत नहीं, वो वाला हिसाब है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम अपने स्मार्टफोन को बचा सकते हैं, अगर हमारा स्मार्टफोन चोरी हो भी जाए तो हम कैसे उसको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए तो मैं अपने मोबाइल में एक सॉफ्टवेयर पहले से इंस्टॉल करना होगा, उसका नेम है VLOOKUP। अब मैं आपको दिखाता हूँ उसकी वीडियो, there is no need। कैसे करोगे? रिपोर्ट कराकर कंपनी में कॉल कराकर पूरा प्रूफ देकर रिपोर्ट लगाकर जब भी तो कर सकते हो। बट मैं तुम्हें ऐसी ट्रिक दिखाऊंगा कि आप घर पे बैठ के से कर सकते हो, बट ये हिडन होगी, कोर्स में बता लगेगी। इसमें नेट चल रहा नॉर्मल प्रोग्राम है। तो उसके लिए अलग डिफरेंट टेक्निक यूज करनी होगी, मैं नॉर्मली बता रहा हूँ आपको एकदम। अगर ऐसे क्या है बताने लगा आती है तो मेरे लिए इलीगल माने जाओ, अगले दिन मुझे ड्रॉ पकड़ के ले जाएगी घर से, तो 7 साल की जेल तो मुझे होगी ना, तो मैं थोड़ी नहीं। ठीक है समझता है। ओके सो गाइस देयर इज सम इंटरनेट प्रॉब्लम, सो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे आगे और भी चीजें मैं आपको बता सकता हूं। अब हम स्टार्ट करते हैं, जब तक ले विंडोज हैकिंग। आर यू रेडी फॉर दैट? आपने सुना होगा
कि विंडोज एक्स में एक्सपी है सबसे लूज, क्योंकि बंद भी हो चुकी है, उसे तो हैक कोई भी कर सकता है, क्योंकि उसकी सर्विसेज बंद कर दी है खुद माइक्रोसॉफ्ट बिल गेट्स ने। अब वो ना तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बैंक में यूज हो रहा, ना ही कहीं। यस, तो उसके बाद कौन सी आई थी? विंडोज एक्सपी के बाद कोई भी बंदा बताए, कोई भी स्टूडेंट बताए। विंडोज विस्टा, फिर उसके बाद 7, फिर उसके बाद 8, फिर उसके बाद So guys, please plug the cable. HDMI cable, plug इसमें. यहाँ पर take motion plug. So guys, आप XP छोड़िए, Vista छोड़िए, 7 छोड़िए, 8 छोड़िए, 8.1 को हैक करके दिखाऊंगा तुम्हारे सामने। बोलो छोटी चीज है। 8.1 को हैक करके दिखाऊंगा तुम्हारे सामने अभी। या ठीक है, तो गाइस पासवर्ड चेंज किसको आता है? बॉयज या गर्ल्स किसी में से भी हाथ करो, ठीक है? आ जाइए मिस्टर प्लीज, आ जाइए। सबसे पहले मैं आपके सामने साइन आउट कर रहा हूँ। पहला पासवर्ड इसका NIIT आपको दिखा सकता हूँ, कोई मैं पागल नहीं बना रहा, सबके सामने प्रूफ दिखा रहा हूँ। साइन आउट कर लूं, साइन आउट हो चुकी है। प्लीज डालिए NIIT। लिसन गाइस, लाइट आ चुकी है, कोई दिक्कत नहीं। रहने दो बुला बस हो गया। हेलो आराम से बोल रहा हूँ, मेरे भी गले में दर्द हो रहा है, अंडरस्टैंड यार। हाँ ये भी बोल रहा हूँ। पहला पासवर्ड डालने वाले हैं NIIT, ठीक है? अब कोई भी बंदा खड़े होके तुम कोई भी पासवर्ड डालो, ठीक है? सुरदीप तो गाइस मुझे आगे जो ये लोग डालने का मैंने बताएंगे। तो गाइस प्लीज जैसे मेरे 5 मिनट बाद ब्रेक, ठीक है? आगे और ठीक है गाइस, मिस्टर प्रदीप प्लीज रिपीट US नंबर 74 79 37 43 25 92। गाइस जैसे प्लीज करता था। अब ये तो नॉर्मल फॉर्म है। अगर US का बंदा इस नंबर पे कॉल करेगा तो उसकी ING कॉल का चार्ज रहेगा 1520 रुपए, ठीक है? राइट? यस सर, ठीक है? अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर वो इस नंबर पे कॉल करेगा तो उसका चार्ज ऐसा टोटल रहेगा। मिस्टर विकी तिवारी जस्ट टैप दिस नंबर प्लस 44 डबल 4 हो गया 79 37 43 25 92। प्लीज जॉइन मी, don't call on this number. Yeah, you can call. किस नंबर पे कॉल करेंगे? Thank you. This one. देख रहे हो? इसका ही नंबर। भाई कॉल दिखाइए। आपने मोबाइल दिखाइए। अपना मोबाइल दिखाइए। ऊपर ही। ठीक है? So guys, ठीक है? अगर मैं अपने कोई ऐसी ट्रिक बताऊंगा, ऐसी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराऊं जिसके थ्रू अगर आपका अकाउंट हैक हो भी जाए
तब भी आपके मेल सिक्योर है, यानी पासवर्ड के भी अंदर पासवर्ड कैन यू मैच है? ये फीचर है जीमेल के पास? नहीं है, नहीं है, ये हिडन फीचर है, लेकिन जीमेल के पास है नहीं, हिडन नहीं है, तो है नहीं। सो मैं इसको हिडन में नहीं रखूंगा। मिस्टर प्रतीक, प्लीज प्लग द केबल और इंटरनेट सिस्टम। प्लीज डोंट बी। चल भैया अच्छा मैंने अपना रिमोट ऑन कर दूं इससे गाइस मैंने इसको कनेक्ट कर लिया अपने स्मार्टफोन। इन योर स्मार्टफोन एंड पेपर हम जा सकते हैं। एक्सटेंशन पता है क्या होता है? भैया बंद कर दे, सोना नदी का बोलते हैं। एक्सटेंशन पता है क्या होता है? मैं बताऊं एक्सटेंशन किसी को पता है? आपको पता है? मैं आपको बताता हूँ। ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग पता है क्या होती है? जात में बोलो। ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग नीचे यार आपको सुनाई दे रहा है? मैं ऐसे बोल रहा हूँ सबको। ठीक है। ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग पता है क्या होती है? नहीं पता? ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग में आपको बात बताऊंगा। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बताऊं, गूगल हमारा एक गूगल क्रोम हमारा ओपन सोर्स ब्राउज़र है। इसके एक्सटेंशन क्या होता है? एक्सटेंशन दैट मीन दो मीनिंग हो सकते हैं एक्सटेंशन के। तो पहला मीनिंग क्या होता है? एक्सेल, किसने सुना है? एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वर्ड, उनकी फाइल का एक्सटेंशन पता है किसी को? क्या होता है? docx, xls सुना है? पता होगा। यहाँ से सेव करते हैं बॉक्स कॉलम, अंडरस्टैंड? क्लिक एंड गो टू सेटिंग। There is an option in extension. Okay? All of you understand, guys? Drag the point. Get more extension. Option आ रहा है? Click there. There is a good extension. मैं आपको बताऊंगा इसके मैं जाके गूगल क्रोम प्ले स्टोर पे प्ले स्टोर ये गूगल क्रोम का स्टोर ही है, यानी ये प्ले स्टोर होता है हमारा। स्टेप पे इसके भी एक्सटेंशन जैसे iOS का क्या होता है, एप्पल का क्या होता है, वीडियो बनने पे बेकार हो जाती है। iTunes वगैरह यहाँ से डाउनलोड भी होते हैं और भी होते हैं। देखो ऐसी वेबसाइट खुल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे सर्च करने के लिए बोलेगा गूगल क्रोम वेब स्टोर, ठीक है। यहाँ पे डालोगे सिक्योर गूगल Gmail by Stripe, ठीक है। एंटर। ये सब स्पेलिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है। देखो यहाँ ऑटोमेटिक आ जाएगा सिक्योर मेल फॉर Gmail by Stripe आ रहा है। यहाँ पे क्लिक करेंगे फ्री में तो इसे ऐड कर सकते हैं अपने एक्सटेंशन में, ठीक है। मतलब डाउनलोड कर सकते हैं गूगल क्रोम के अंदर, राइट? अंडरस्टैंड और नॉट? और डाउनलोड करने के बाद इसमें क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना, बस डाउनलोड करके छोड़ देना है। इसमें पहले से ऑलरेडी ऐड है, इस वजह से इसमें रेटेड दिखा रहा है, यानी कि बता रहा है कितने स्टार दोगे आप इस पे, ठीक है। तो हम इसे दिखा मैं आपको बता दूं, पहले से ऐड है, देखो यहाँ पे ऐड है सिक्योर जीमेल फॉर, ठीक है। इसे इनेबल मैंने पहले से कर रखा है। तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करना, बस इस एक्सटेंशन को डाउनलोड करना है अपने गूगल पे। ये सब लोग सो गाइस लिसन एंड सी, लुक हियर। देखो आपको दिखाई दे रहा है पहले कंपोज का बटन, जानते हो कंपोज किस लिए होता है? यस और नो? सेंड करने के लिए यार, ठीक है। तो कंपोज का बटन पहले ओनली कंपोज का बटन आता था, लेकिन यहाँ पे लॉक का ऑप्शन आएगा, लेकिन इसमें आई कैन शो यू ना, पहले लॉक का आता था, स्पीड की वजह से हो नहीं रहा। तो क्या करेंगे? ये एक्सटेंशन ऐड करने के बाद ऑप्शन आता है, इस पे क्लिक करेंगे आप, यानी कंपोज पे नहीं, इस पे करोगे। पहले ओनली कंपोज आएगा, इस पे लॉक का साइन बना होगा वैसे एक्स्ट्रा, ठीक है। शादी वगैरह हम करोगे
लिखा होगा abc@xyz, यानी होगा तो यही, लेकिन अनरीडेबल फॉर्मेट में। अब आप एक बात बताइए, जैसे आप पासवर्ड सेंड करेंगे तो वो जो डेटा होगा ना आपका मेल, वो अनरीडेबल फॉर्मेट में जाएगा, यानी कोई उसे पढ़ नहीं पाएगा, राइट। अगर उसे पढ़ना है तो डिक्रिप्शन करना होगा, डिकोड, यानी कि अगर उसे इस फॉर्म में लाना है एथिकल, तो दे नीड टू एंटर पासवर्ड NIIT, जो कि वो फॉर्म में करना हो गया सिक्योर। जब वो उस पर पासवर्ड डालेंगे जब उनका मेल ओपन होगा, राइट। सो आपका सब कुछ सिक्योर हो गया। थैंक यू। सो प्लीज गाइड एप्लीकेशन फॉर्म। और मैं आपको बता दूं, अगर आपको इसके बारे में और डिटेल चाहिए तो आपको प्रोवाइड कराएंगे। सभी के पास है ये, ठीक है। अगर किसी को हेल्प की जरूरत हो, कैसी भी आईटी प्रॉब्लम से रिलेटेड, तो हमसे भारत सर से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे लिखा हुआ है मेरा यूजर नेम www.facebook.com/unirock7, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो आप पहले एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दीजिए। Our courses ये सभी हमारे कोर्सेज हैं जो एथिकल हैकिंग में हैं। आपको जो कोर्स कराया जा रहा है अंकित फाड़िया सर्टिफाइड एथिकल हैकर, ये कोर्स है। पिछले टाइम डेमो क्लासेस थी, तब बताया था, सभी ने पूछा था क्या इसकी फीस है, क्या कोर्स में है, तो आपको कंप्लीट मिली है। इसमें कोर्स है और चैप्टर हैं, टोटल 50 चैप्टर हैं। ये सभी चैप्टर आपको कंप्लीटली कराए जाएंगे। जो भी कोई भी इश्यू होता है वो आप हमसे पूछ सकते हैं। 2 घंटे ऑनलाइन अंकित फाड़िया USA से ऑनलाइन रहेंगे, यहाँ पे क्लासेस कराएंगे। 2 घंटे ऑनलाइन वीडियो चलेगी। यहाँ पे कोई भी क्वेरी होती है, कुछ भी होता है या कोई क्वेश्चन है, आप खड़े होकर के आइए और लैपटॉप यहाँ रहेगा, आप उसमें चैट बॉक्स आता है और उसमें आप टाइप कीजिए हैंड टू हैंड 1 सेकेंड या 2 सेकेंड के आफ्टर वो आपका जो क्वेश्चन होगा उसका कंप्लीटली आंसर देंगे विद चैट, वॉइस नहीं, ओनली चैट। ये आपके कोर्सेज हैं। ड्यूरेशन इसमें 30 आवर्स दी हुई है इस कोर्स की। सैटरडे एंड संडे 3 to 5 ऑनलाइन क्लासेस रहेगी। एंड उसके बाद 1 आवर जो भी आपका जैसे जो भी क्वेरी होती है, जैसे कोई भी उन्होंने चैप्टर पढ़ाया किसी इश्यू का और आप सभी की समझ में नहीं आ रहा है, तो आप जैसे 2 घंटे के बाद अंदर पढ़े तो चले जाएंगे। उसके बाद अब जैसे भी कोई इश्यू रह जाता है, वाईफाई पासवर्ड हमारे पास नहीं है, हो रहा है, तो आप फिर हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। 1 घंटे के करीबन हम आपकी क्लास ऑफलाइन चलाएंगे जो भी है, यानी आप जो भी कोर्स करेंगे, जो भी चैप्टर करेंगे वो कंप्लीटली हम जो भी डिस्ट्रक्शन होंगी वो कंप्लीट करेंगे। आपको जो भी कोर्स होगा वो एकदम क्लियर होगा। ये फैसिलिटी आप लोगों के लिए मिलेगी। आपको और भी एक और ट्रिक बची बात है, प्लीज सर। देखिए आप सभी के पास कंप्लीट है, कंप्लीट दीजिए, कंप्लीट दीजिए। इसमें चैप्टर हैं, अब चैप्टर पढ़िए। इस कोर्स की फीस है 12,000 रुपए प्लस टैक्स, 12,770 रुपए इस कोर्स की फीस है टोटल विद सर्टिफिकेट। जब मैंने इसमें एडमिशन लिया था करीबन 1.5 साल पहले, तो मैं 1.5 साल में करके आया, करीबन 4 साल पहले जब मैं वही ऑनलाइन करके आया था फेस टू फेस विद अंकित फाड़िया, तभी मेरे फ्रेंड बने थे दिल्ली में। यहाँ पे ऐसी ना तो कोई नेट की प्रॉब्लम, कोई भी ऐसी नेट की इश्यू नहीं थी। क्लास में रह करके नेट नहीं था किसी के पास सही। अब तो 2 सर्वर आ गए, एक मेरे नाम से चल रहा है भारत नेटवर्क के नाम से, और एक और है एक्सट्रीम के नाम से। अभी ये सर्वर आए हैं, पहले कुछ भी नहीं था। मैंने BSNL का ब्रॉडबैंड भी लगवाया था, 15 दिन चला था केवल,
उसके बाद 7,500 रुपये का बिल मेरे नाम पे पेंडिंग पड़ा है 15 दिन में। तो पहले नेट की कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं थी, जिससे फिर मुझे दिल्ली जाकर के ये 1.5 साल मुझे वहीं कंप्लीट करना पड़ा। तो 1.5 साल में करीबन मेरे 4.5 लाख रुपए खर्च हुए थे इसी कोर्स को करने में। मैंने उनसे बात की तो मैंने बताया हमारे यहाँ पे टाउन एरिया है, बच्चे कुछ ऐसे हैं जो ओनली नॉलेज के लिए करना चाहते हैं, उन्हें सर्टिफिकेट से कोई मतलब नहीं है। तो जब मैंने उनसे काफी डिप्रेशन डाला तब उन्होंने मुझे ये दो टाइप में अमाउंट बताए थे। जो भी सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं वो 12,770 रुपए टैक्स के साथ, टैक्स है इसमें साथ ही, वो ड्यू करना पड़ेगा ऑनलाइन करना ये पेमेंट। और प्लस इसमें ये ऑफलाइन पेमेंट है। ये टोटल ऑफलाइन यहाँ पे 7,000 है, लेकिन अभी 15 दिन पहले यहाँ 8,000 रुपए हो गया, 8,880। 8,000 कोर्स की फीस है। वेबसाइट वो कोर्सेज चल रहा है तो इस वजह से वेबसाइट अपडेट नहीं की हुई है। 8,000 रुपए है और प्लस टैक्स 880 रुपए पर टैक्स लग जाता है। सर्टिफिकेट किस नाम से मिलेगा, पूछना चाहता हूँ। क्या सर्टिफिकेट किस नाम से मिलेगा? एथिकल 14 साल की उम्र में उन्होंने इनके फाड़िया 14 साल की उम्र में बुक लिखी थी उन्होंने एथिकल हैकिंग के ऊपर। बीटेक दबा करके की है उन्होंने, जो कि यूएसए में उन्होंने डिग्री डिमांड की थी, अब बीटेक की है। ये लास्ट डेट है इसकी 28, मैंने बताया था लास्ट डेमो में 28 लास्ट डेट है। उस तब तक आप जितने भी फॉर्म या जो भी कोर्स करना चाहते हैं वो फॉर्म फिल आपने कर ही दिया है। आपको स्लिप मिलेगी फॉर्म के बाद, वो स्लिप लेकर के आनी है। और फीस उसमें कोई भी एक मतलब इसमें इंस्टॉलमेंट में नहीं है, डायरेक्ट एक साथ ही पे करनी पड़ेगी आपको। जो बाकी 70 रुपए भी हैं वो भी देने पड़ेंगे, इंस्टॉलमेंट नहीं है। जो भी कोर्स करना चाहते हैं वो डायरेक्ट फुल पेमेंट के साथ होगा। So guys, और एनी क्वेश्चन? one second sir. अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि बेनिफिट ऑफ ऑलमोस्ट तुम समझ ही चुके हो। अगर अपनी नीड के लिए भी तुम कोर्स कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा अब बात मैंने बोला इसकी जॉब, ठीक है, सैलरी बोली थी ना, दूसरी बात इसकी सैलरी का कितना होता है। एक बात है 2015 में नरेंद्र मोदी ने इस झटके के बाद वेबसाइट होने के बाद 5 लाख जॉब निकाली है साइबर क्राइम में, यानी कि डिजिटल हैकर की एंट्री हुई है 2015 में। मतलब अगर वो सर्टिफाइड होते थे इस कोर्स के द्वारा, देखिए मैं आपको बताऊं, पेज पढ़िए, ये कोई हमारी तरफ से सर्टिफिकेट नहीं है, ये प्रोफेशनल यूएस का सर्टिफिकेट है, इंडिया से सर्टिफाइड है हैकर। ये लिखा हुआ ना आपका सर्टिफाइड हो सर्टिफिकेट लिखा हुआ है, इसका मींस हैकर होता है। लेकिन लैंग्वेज में, हैकिंग के लैंग्वेज में ये अलग अनरीडेबल फॉर्मेट में मैं आपको बता दूं। आप प्रोफेशनल एथिकल हैकर का आपने ये कोर्स कर लिया, 50% पासिंग है, ऐसा नहीं है एग्जाम होगा इसका। अब आप बताइए अगर आप इसमें इंटरेस्ट रखते हो तो जाहिर सी बात है एग्जाम तो ऐसे ही क्रॉस होगा। बात आती है कितनी परसेंट लाने की, ठीक है। 2015 में 5 लाख से ज्यादा जॉब निकल रही है इंडिया में साइबर क्राइम में। अब मैं आपकी सैलरी बताता हूँ, इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है। इसमें 4th क्लास का लड़का, आपने 3rd क्लास को अंडर में। अब मैं आपको दिखाऊंगा की बेनिफिट्स क्या है इसके डिप्लोमा के। की बेनिफिट्स देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज दिखा देता हूँ, ये चीज देखना गौर से। कंट्रोल प्लस कंट्रोल प्लस 1 सेकेंड, देख रहे हो। Earn starting salary up to 30,000 per month in India, up to 7,000 USD। देख रहे हो, 4th क्लास, 3rd क्लास नहीं, 4th क्लास की है। 15% नॉलेज रखेंगे एथिकल की। 30,000 से स्टार्टिंग के। बीटेक में क्या एक्सपीरियंस ऐड करने के बाद तुम्हें मुश्किल से 10,000 रुपए मिलेंगे। नहीं, बीटेक के साथ ये मतलब ऐसा नहीं कोई भी कोर्स कर सकते हो। मैं बीएससी कर रहा हूँ सेकंड ईयर, साथ में आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर कर रहा हूँ, मैं तो इसमें वहाँ ही हूँ। मैं जॉब नहीं करनी, मुझे खुद की आईटी कंपनी बनानी है क्लास के अंदर, ठीक है। मुझे तुम्हारी जरूरत
अपने पैसे बनाने नहीं है, मेरे को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा क्योंकि तुम सब कुछ ऑनलाइन करोगे अपने घर पे बैठ के। मैं चाहता हूँ इस एकेडमी के थ्रू अपनी एक टीम बनाओ, अपनी एक टीम बनाओ जिससे आने वाले समय में मैं यहाँ पे एक कंपनी ओपन करने वाला हूँ। और आपको एक चीज और बता दूँ, अब की बार BTC, SSC और जितनी भी सर कौन सी होती है और पुलिस की SSC सभी होते हैं, महिंद्रा में आते हैं कोचिंग करने, जाते हो? ठीक है, आप घर पे बैठ के वीडियोस देख सकते हो, एक एक क्वेश्चन की, सब कुछ ऑनलाइन होगा। कैन यू इमेजिन? इसने सोचा है, लेकिन अब होगा आज से 6 महीने बाद। 1 लाख का बंदा करेगा, मैं करूंगा और आप लोग सब करवाओगे। मुझे तुम्हारी नीड है ऐसी ट्रिक्स की, रोजगार मैं प्रोवाइड कराऊंगा तुम्हें, गारंटी ले रहा हूँ, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी तुम्हें। ऐसे नहीं कि कोर्स तो कोई भी कर लेता है, समझ गया? मुझे पता है कि वो बंदे जो मजे लेने वाले थे वो चले गए बाहर, ठीक है? जो यहाँ पे है वो सीरियस बंदे जो कुछ करना चाहते हैं। आई कैन चैलेंज, ये साइकोलॉजी होती है। जो ट्रिक्स देखना चाहते हैं, जादू देखने आए थे वो चले गए, जो यहाँ पे है रियल में वो कुछ करना चाहते हैं लाइफ में। मेरी वेबसाइट स्टेट लेवल पे हिट गई है, आपको पता है? शिक्षक दिवस में बनी वेबसाइट किसने पढ़ा था सभी ने ऑलमोस्ट, ठीक है? वो मैं नहीं बनाई थी, उदित नारायण गौड़ मेरा नाम है। नोएडा की तरफ से, NIT की तरफ से 15,000 का चेक और जॉब पे 5 ऑफर आए। क्यों ज्वाइन नहीं करी? ये नहीं कि मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है, इसलिए कि मुझे नौकरी नहीं करनी। नौकरों को करे तो पता है मेहनत तो मजदूर भी करता है, मेहनत तो मजदूर भी करता है, लेकिन हम क्या करते हैं? स्मार्ट वर्क। हम मेहनत नहीं करते हैं, लेकिन हम करते हैं स्मार्ट वर्क। एक एग्जाम्पल मैं तुमको बताता हूँ। एक पटाखे की दुकान लगाता है यहाँ पे ढकेल पे, ठीक है? वो कितना अर्न करता है बताना? बस मंथ पे, सॉरी डे पे, ठीक है? ठीक है, 1000 अर्न करता है, लेकिन उसके साथ मॉल में बैठा हुआ, मॉल में GVM में अगर वो लगा रहा है तो कितने कमा रहा होगा? 1 लाख रुपए पर महीने, राइट? तो क्या उसमें क्या अंतर है? ग्रेजुएट तो वो भी नहीं, ग्रेजुएशन तो उसने भी नहीं करी। उसमें वे ऑफ थिंकिंग कुछ अलग, सोचने का तरीका। जब तक तुम सोचोगे नहीं आगे कैसे बढ़ोगे? जब तुम्हारी सोच ही नहीं बढ़ेगी तो तुम आगे कैसे बढ़ोगे? एक बात बताओ, राइट? यस और नो? यस और नो? जब तक तुम्हारे सोचने का तरीका नहीं बदलेगा तुम कैसे करोगे आगे? मेरा एक क्वेश्चन है तुमसे। देखिए, एक छोटा सा फॉर्मूला बताता हूँ, शायद आपने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो। इस 5% पैसा उन लोगों के पास है जो दूसरों के लिए टाइम अपना सेल करते हैं। लाइक एम्प्लॉय, चाहे वो गूगल, बिल गेट्स का कोई हाई पेड वाला एम्प्लॉय क्यों ना सही, वो भी 5% के अंदर ही आता है। और छोटी सी दुकान की परचनी वाला क्यों ना सही, वो 95% का। आप लगा लीजिए अंदाजा अपने आप, 95% जितनी इंडस्ट्रीज हैं वो आ रही हैं, और जितने भी एम्प्लॉय हैं, अब लगा देखिए एक इंडस्ट्रीज में कितने वर्कर होंगे? वर्कर। इंडस्ट्रीज को क्या अकेला मालिक चला रहा है? वर्कर चला रहे हैं, लेकिन वर्कर 5% में आ रहे हैं, और एक अकेला बंदा जो एम्प्लॉय है इंडस्ट्रीज का 95% पैसा कमा रहा है। मंगलायतन में अभिनव सर है जो कि उसकी पूरी सॉफ्टवेयर की प्लानिंग करते हैं, डिजाइन करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं। उनके साथ 1 घंटे मीटिंग थी हमारी, और हमें ऑफर अब करा जाएगा। एप्लीकेशन लिखी है उन्होंने। देखिए, मैं 19 साल की उम्र में ये सब कुछ कर सकता हूँ, तो तुम अब क्यों नहीं कर सकते? क्या तुमने कुछ खो दिया? नहीं। तुम्हें गाइडेंस नहीं मिली थी, लेकिन मैंने सारी गाइडेंस इंटरनेट से चुराई है। मैं क्या करूं? मैं तारीफ नहीं कर रहा इसमें। देखिए, सोचने के 2 तरीके होते हैं। सपोज दैट अब यही है, अब आप देखिए, इस मोबाइल से मैंने वायरलेस माउस कनेक्ट किया, इस मोबाइल से मैंने हैकिंग करी क्या सुन लो, ठीक है? अब तुम इस मोबाइल को किस नजरिए से देख रहे हो? है काम की चीज, ठीक है? मैं बाहर जाऊंगा पड़ोसी के यहाँ, इसे नॉलेज भी नहीं है, वो क्या देगा? अरे मोबाइल क्या देगा? है फर्क? यस और नो? तो तुम्हें समझ में आया मेरा पर्पस क्या है? अपना टाइम, जरूरी नहीं है पढ़ाई करो, खूब करो, मेरा मैथ में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैं आज आ गया हूँ, केमिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं है, मैं आज आ गया हूँ। मैं वही बैंक वेंचर हूँ जो पीछे बैठता था, मैं वो फेलियर हूँ जो 9th में फेल हुआ था, लेकिन फेल नहीं हुआ था, 3 में सप्लीमेंट्री लगी थी। आज मैं इस मुकाम तक हूँ, मेरे फ्रेंड्स इसके सबूत हैं।
सारे क्या तुम सोच सकते हो ये वो बंदा तुम्हारे सामने खड़ा है जिसे टॉर्चर करके मेरे को टॉर्चर किया गया था, आज मैं उनके मुंह पे जवाब दे रहा हूँ। आई एम द सक्सेसफुल मैन। समझा? लेकिन आप भी कुछ अलग कर सकते हो। अभी आपकी उम्र तो वही नहीं है। आपको पता है आदमी की उम्र कितनी होती है? ज्यादा से ज्यादा इस एज में 50 साल के बाद वो बूढ़ा हो जाता है, राइट? क्योंकि आज की जनरेशन ही ऐसी है, खाने पीने में इतनी मिलावटें आ रही है, ठीक है? आदमी क्या करता है 25 साल तक तो बीटेक करता है, 26 साल तक, फिर उसके बाद सोचता है कि मैं एमटेक कर लूं, 3 साल का ही 27 का हो गया, फिर सोचता है यार पीएचडी कर लूं, ठीक है? 30 साल ऐसे हो गई, फिर सोचता है शादी तो हो चुकी होती है, बच्चों का होता है, फिर सोचता है यार अब तो कुछ करने का टाइम होता है, तो वो कुछ कर नहीं पाता। वो हमारे इंडिया का मेन रीजन यही है, यही है सक्सेस का रीजन। यूएसए में बस डिग्री नहीं देखते हैं, टैलेंट होता है, जॉब पकड़ते हैं, जॉब पकड़ते हैं, उनकी पूरी लाइफ सक्सेस होती है। हमारे यहाँ पर आधी जिंदगी से ज्यादा तो स्टडी पे खर्च कर देते हैं, फिर बाद में जब कुछ करने का जो करने की उम्र होती है उस टाइम पे क्या होता है वो स्टडी में लगे हुए होते हैं। और एक चीज और, इसके लिए कोई लिमिट नहीं है। तुम्हारी ग्रेजुएशन क्या मैटर करती है? डॉट मैटर। क्योंकि अंकित फाड़े ने 14 साल की उम्र में हैकर बनने के बाद बीटेक करी, ठीक है? जरूरी है बीटेक वाला मेरे साथ का, ठीक है? ये कर रहा है, सिविल से है, और भी बंदे हैं, क्यों कर रहे हैं? बट दे हैव अ सेम नॉलेज तुम्हारी तरह, बट दे हैव अ डिफरेंट आइडियाज टू प्रूव योरसेल्फ। ये चाहेगा, मैं अपनी कुछ बातें रखना चाहता हूँ। ये बंदा आज से 2 साल बाद खुद की अपनी कंपनी बनाएगा, मैं इसका चैलेंज देता हूँ यहाँ सबके सामने। सिविल में वो भी आईटी से, सिविल में, क्योंकि हम दोनों का कॉम्बिनेशन सबसे ज्यादा हमारी अच्छी फ्रेंड्स हैं, और भी मेरे फ्रेंड्स हैं, सभी मेरे फ्रेंड्स हैं। हमारी टीम में ना कोई बड़ा होगा, ना कोई छोटा होगा, ना कोई डायरेक्टर, ना कोई नीचे, ठीक है? मैं चाहता हूँ खुद की कंपनी इखलास से, मेरे को चाहिए